टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन में, जिसमें हमने कहा था कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, मतलब कि डेल वी ओवर डेल टी। बट दिस वाज द इक्वेशन फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू देयर रिस्पेक्टिव angular analogues, मतलब कि a that will be replaced by the alpha is known as the angular acceleration and that is also a vector quantity, and alpha और del v चेंज हो जाएगा आपके पास से del ओमेगा से, that is the angular velocity, और del t remains same, so this is the equation, general equation for the angular acceleration। अब यहाँ पे अगर बिल्कुल पहले की तरह अगर आप एवरेज angular acceleration लेना चाहें, then the equation will remain same, del omega over del t. Here del omega is a vector quantity, here it was also a vector quantity, and average angular acceleration is also a vector quantity. So the most important thing is the instantaneous angular acceleration, जिसको हम instantaneous, the word instantaneous again corresponds to a very small instant of time जिसमें हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो small instant of time के लिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट del t approaching to 0, del omega over del t. Then this equation corresponds to the type instantaneous angular acceleration. Now next thing is the direction. As we have noted that in this equation the direction of the omega that will show the direction of the alpha. So if omega is along the axis of rotation upward or downward, then alpha is also along the axis of rotation. तो आपके पास direction जो है that will be along the axis of rotation. Now next thing is the unit. आप यहाँ से इस इक्वेशन में देख सकते हैं यूनिट आपके पास इक्वेशन बनती है अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा ओवर डेल टी, जबकि आपके पास है डेल ओमेगा दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड, एंड फॉर 1 सेकेंड फॉर दिस डेल टी, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द अल्फा। इट कैन बी रेडियन पर सेकेंड, इट कैन बी degree per second square, or it can be revolution per second square. So these are the 3 units for the angular acceleration. Now next is the dimension. आप इन units को देख के बता सकते हैं कि जो upper part है numerator that is for the angle, और angle की कोई dimension नहीं होती, हमारे पास सिर्फ lower denominator के लिए dimension रह जाएगी, and the dimension will be simply t raised by -2 within square brackets. This is the dimension of the angular acceleration. Now this topic will remain incomplete if we don't write the formula or relation between the linear acceleration and the angular acceleration. तो अगर आप यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहें तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, you have to suppose that a body is moving in a circular path. बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यू कैन टेक अ रिजिड बॉडी एज वेल, और यहाँ पे बॉडी जब मूव कर रही है अगेन दिस सर्कुलर पाथ इज हैविंग द रेडियस r. Body is moving, suppose the body is moving from the position P1 to the position P2, and while moving from P1 to P2 it has covered an arc length S, और यहाँ पे दरम्यान में जो आर्क लेंथ एंगल बना रही है एट द सेंटर दैट इज नोन एज द डेल थीटा, और इट कैन बी थीटा एज वेल, इट कैन बी थीटा, इट कैन बी टेकन एज डेल थीटा। यहाँ पे आप इक्वेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप इक्वेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली वी इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है वो हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। वाई, बिकॉज वाइल बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट P1 to P2, then at each and every point on its path from P1 to P2 the body is changing its direction, and simply we can say that the velocity is along the tangent to the circle and velocity is changing the direction at each and every point। और एक्सेलरेशन के होने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो, जो कि हमारी सर्कुलर मोशन लगातार हमें प्रोवाइड कर रही है। दिस मीन्स दैट नाउ वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय टी। सिंपली यू कैन यूज दैट डेल वी ओवर डेल टी दैट इज इक्वल टू आर है ओमेगा दैट विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय डेल ओमेगा ओवर डेल टी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सपोज दैट वी हैव टेकन दिस प्रोसेस फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आप स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचिंग टू 0। यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई कर सकोगे, लिमिट डेल टी अप्रोचिंग टू 0। नाउ दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्वेशन ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ए। while this equation that can also be settled down as r को हम अलहदा लिख लेते हैं, और लिमिट डेल टी अप्रोचिंग टू 0, एंड दिस लिमिट इज़ नाउ गोइंग टू अप्लाई ओनली डेल ओमेगा ओवर डेल टी। तो यहाँ पे देखें कि a इज़ इक्वल टू आर, और ये जो रिलेशन है आपके पास ये यहाँ पर ऊपर आपके पास इंस्टेंटेनियस अल्फ़ा इनके एंगुलर एक्सेलरेशन की आ रही है, और यहाँ पे इस रिलेशन का आप चेंज कर सकते हैं अल्फ़ा के साथ। नाउ वी हैव ड्राइव द रिलेशन दैट a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा।
यहाँ पर आपके पास ये जो ए है दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।